Hello everyone, welcome to Adhinam Academy. This is Mohit Bhushan, the Faculty of Business Communication at Adhinam Academy. Guys, as you have the subject business communication, so the same I'll be teaching you. So let's start with the topic communication and business communication. Guys, आज हम communication की बात करने वाले हैं. That what do we mean by the word communication? The word communicate has been derived from the Latin word communis. बेटा जो कम्युनिकेशन वर्ड है लैटिन वर्ड कम्युनिस से उठाया गया है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिस एक लैटिन वर्ड है जिससे कम्युनिकेशन वर्ड उठाया गया है, राइट, which means to share. And what is the meaning of this particular Latin word communis? It means to share. Share means साझा करना, right? Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior. It is the expression of facts, opinions, ideas or feelings. A number of definitions have been given to the term communication. A few important ones are, and these are the definitions. I would like to tell you about communication, guys. Whenever it comes to talking about communication, then in communication we exchange our ideas, some information, our opinion, our perspective regarding something to the another person. That means we must have two persons to complete the process of communication, right? One is the sender and second one is the receiver. What happens? This sender, बेटा sender क्या करता है? ये send करता है, भेजता है. क्या भेजता है? कोई ना कोई information. कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई अपना ओपिनियन, कोई भी मैसेज. तो सेंडर क्या करता है? कोई भी मैसेज रिसीवर को सेंड करता है. साथ ही साथ रिसीवर जब इस मैसेज को रिसीव कर लेता है तो ये क्या करता है? सेंडर को फीडबैक देता है. दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं किन के साथ? कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है और मैं आपसे इंग्लिश में ही बातें कर रहा हूं, एंड आई एम द सेंडर, सो यू आर द रिसीवर. व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, यू अंडरस्टैंडिंग, और आप हाँ, ना, यस, नो या फिर अपने कुछ बॉडी बिहेवियर से, बॉडी मूवमेंट से, अपनी आईज से कुछ ना कुछ मुझे फीडबैक भी देंगे, राइट? दैट मीन्स कभी भी कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास कॉमन सिंबल्स हो, कॉमन साइंस हो, कॉमन बिहेवियर हो, कॉमन लैंग्वेज हो जो मुझे भी समझ आती हो और आपको भी आती हो. This time also we are having communication. I am making you understand something, you are understanding, and yes, you are saying yes, no, or you are understanding. In some manner you are giving me the feedback, right? So communication in its simplest form of conveying the information from one person to another. So this is the same thing what I have told you. Communication का मतलब है बेटा कि जब information को convey किया जाए from one person to another person, right? This is said by Hudson. Communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. It was said by George Terry. तो बेटा यही चीज है that you one is the sender and second one is the receiver, right? और क्या होता है? फैक्ट्स, आइडियाज, कुछ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, इमोशंस जो है शेयर किए जाते हैं. शेयर किए जाते हैं इसलिए जो है इसका नाम कम्युनिकेशन रखा गया, जो कि लैटिन वर्ड कम्युनिस से उठाया गया है. आई होप आपको कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव फर्दर. नाउ communication is an essential condition of our existence and the most important activity of human beings. Communication is a two-way process. There must be at least two persons to allow the completion of the process. That means, beta सबसे पहली line, that's very important. Communication is an essential condition of our existence. सोच के देखिए, यदि इस दुनिया में कोई communication का साधन ही नहीं होता, अगर हमें कोई language नहीं आती, सपोज मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो किसी ना किसी वर्ड्स, किसी ना किसी सेंटेंसेस, कुछ ना कुछ पैराग्राफ्स फॉर्म करके मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट? अगर मेरे पास बयां करने के लिए शब्द न होते, अगर मुझे ये भाषा न आती, तो मैं आपसे संवाद कैसे करता? मैं आपके साथ कम्युनिकेट किस प्रकार करता? तो बेटा हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? कम्युनिकेट ही करते हैं किसी भी ढंग से. ठीक है, अगर हमने एक अगर मदर ने अपने बेटे को उसकी गलती पर आंख भी दिखा दी कि ऐसा क्यों किया तुमने, उसने बोला नहीं, बट उन्होंने क्या किया? आंख भी बड़ी करके दिखा दी. इसका मतलब उन्होंने भी क्या किया? कम्युनिकेट किया. और बच्चा डर गया
या उसने सॉरी कहा अपने व्यवहार से या कान पकड़ के, इट मींस व्हाट, उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीडबैक दिया. What I'm saying? I'm saying communication is essential condition of our existence. हमारे अस्तित्व के लिए एक कैसी कंडीशन है ये? असेंशियल है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. कम्युनिकेशन बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि टू वे प्रोसेस है. दैट मीन्स एक सेंडर होना आवश्यक है और एक रिसीवर होना आवश्यक है. तो कम से कम दो लोग होने जरूरी है. सिंगल पर्सन है, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी. Right? There must be at least two persons to allow the completion of the process. One takes up the role of a sender. एक sender होता है और बेटा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है receiver या recipient. Right? Webster dictionary states, बेटा एक डिक्शनरी है Webster, वो क्या कहती है? Communication is the act of exchanging information and understanding from one person to another. Same is the case. For communication to be successful, the exchange of ideas and information must result in imparting and understanding its intended meaning. बेटा कभी भी communication तभी successful मानी जाती है जब जिस सोच, जिस नीयत और जिस meaning, जिस अर्थ के साथ एक सेंडर ने अपना सेंड किया है मैसेज, उसी अर्थ, उसी मीनिंग, उसी इंटेंशन के साथ रिसीवर को भी वो समझ आना चाहिए. दैट मीन्स जिस तरह, जिस हिसाब से, जिन एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, आपको भी उसी तरह यदि सारी बातें समझ में आती हैं तो ही हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संवाद सक्सेसफुल है, सार्थक है. ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति बोल कुछ रहा है, सामने वाला समझ कुछ रहा है, तो कोई बोलता कुछ और है, समझता कुछ और है, तो बेटा वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बेशक दो या दो से ज्यादा लोग हों. Its goal is to have the receiver understand the message as it was intended. बात वही है, इसका बेटा गोल यही है कि रिसीवर उस तरह ही मैसेज को समझे जिस तरह मैसेज को बताया गया है. ठीक है, जैसा उसका इंटेंशन रहा है. Whether we communicate through writing or speaking, हम बेटा राइटिंग के थ्रू बात करें या स्पीकिंग के थ्रू बात करें, लैंग्वेज कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. लैंग्वेज का अपना, ठीक है, क्या रहता है बेटा? एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. Now we are going to talk about business communication. जैसे कि हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन में हमने जाना कि दो लोग होने बहुत जरूरी हैं, एक आपका सेंडर और दूसरा रिसीवर, राइट? और रिसीवर की तरफ से फीडबैक होना भी जरूरी है. अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में. बेटा ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन हमने समझा, अब एक वर्ड ऐड हुआ जिसका नाम है बिजनेस. बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है व्यापार. और जब कभी भी बिजनेस या व्यापार किया जाता है तो बेटा बिजनेस का एक ही गोल होता है और वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना. और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कम्युनिकेशन हर लेवल पर होना बहुत जरूरी है. तो बेटा एक बिजनेस में कम्युनिकेशन किस तरह होती है? बिजनेस के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स. हर लेवल पर अलग अलग लोगों के साथ, मैनेजमेंट के अंदर भी और मैनेजमेंट से जो बाहर के लोग हैं, किस तरह कम्युनिकेशन की जाती है एक बिजनेस में, उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है, राइट? जानते हैं, when one communicates to transact some commercial activity that is providing goods or services with the intention of generating profits, it is termed as business communication. बेटा क्या होता है जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को ट्रांजैक्ट करने की, इट मींस जब कभी भी हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात करते हैं, किस इंटेंशन के साथ कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके, उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है, राइट? According to Scott, administrative communication is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organization goals. It means बेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस में मानिए यदि कोई सेंडर किसी रिसीवर को कोई मैसेज भेजता है तो रिसीवर उस तरह ही मैसेज को अंडरस्टैंड करे, उस इंटेंशन के साथ ही अंडरस्टैंड करे जिस इंटेंशन के साथ या जिस मीनिंग के साथ सेंडर ने उसे भेजा है. तभी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे. It links not only the various components of the organization but also its internal world with the external world. एक बेटा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वर्ल्ड होता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी
क्या करता है? जुड़ता है, लिंक करता है, राइट? In order to be proficient in business communication, it becomes imperative to acquire skills of effective writing and speaking. किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए बेटा प्रॉफिट कब आएगा? जब हर लेवल पे कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। तो बेटा ये बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव राइटिंग और इफेक्टिव स्पीकिंग जो है जितने भी एम्प्लॉयज हैं या जो मैनेजर्स हैं एक कंपनी में, उन सभी की होनी चाहिए। दैट मीन्स एक सेंडर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। वो राइटिंग में कोई मैसेज भेजे या स्पीकिंग के थ्रू कोई मैसेज भेजता है। In fact, lack of these may result in loss of business opportunities. और अगर बेटा अच्छी साउंड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो क्या होगा? Loss of business opportunities. Right? Therefore, curriculums of most business schools the world over cover the subject of business communication. इसलिए दुनिया भर में बेटा एक business communication नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आप सोच के देखिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, अब आप सीएस की फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं तो आपके लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट रखा गया है ताकि आप कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझें। बिजनेस में कम्युनिकेशन किस प्रकार किया जाता है इस चीज को आप समझें, ठीक है? It is also common for the prestigious companies to insist upon excellent communication skills as a requirement at the time of recruitment. आज कल का एक ऐसा जमाना चल रहा है बेटा जिसमें आप किसी भी लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक आप जाएं किसी भी नौकरी को ढूंढने के लिए, तो वहां पर ये चीज डिमांड में रखी जाती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, एक्सीलेंट होना चाहिए, है ना? ये आपने लिखा हुआ देखा होगा रिक्वायरमेंट में कि भाई एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? ताकि बिजनेस गोल्स को बेटा क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके, राइट? नेक्स्ट, now let's talk about the features of communication. When we talk about the features of communication, we talk about communication and its good points. Like communication is essentially a two-way process. Yes, we know it's a two-way process. One is the sender and one is the receiver. The success or the failure of communication is decided by the feedback. Feedback से ही पता लगता है कि बेटा जो हमारा communication है वो success है या failure है। सेंडर ने क्या किया बेटा? कोई भी मैसेज भेजा किसको? रिसीवर को, और रिसीवर फिर क्या करेगा? एक इसे फीडबैक जरूर भेजेगा, जिससे ये हमें पता लगेगा कि हाँ भाई, नाउ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल। ओके, हेंस फीडबैक इज एसेंशियल टू द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन बेटा चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन बेटा एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती। एट एवरी लेवल, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीवेयर इट गोज ऑन, इट नेवर स्टॉप्स, राइट? No manager can be effective in his role unless he is able to communicate. कोई भी मैनेजर अपने रोल में इफेक्टिव नहीं हो सकता अगर वो कम्युनिकेशन ठीक से करना न जानता हो। सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, he should be able to have effective communication skills. Then only he will be able to have communication with the people. तभी उसे बेटा एक इफेक्टिव मैनेजर भी कहा जाएगा। Okay, professional and result-oriented organizations are always looking for managers who can communicate persuasively and competently. और ऐसे ही managers जो हैं, जिनकी sound communication skills हैं, persuasively और competently वो बात कर सकते हैं, ऐसे ही managers की organizations में जरूरत होती है। Communication consists not only of facts but ideas and emotions too. Communication is much more than words. बेटा communication जो है ना, वो शब्दों से भी बहुत आगे की बात है। That means words तो matter करते ही हैं, लेकिन वर्ड्स के साथ साथ आपकी टोन कैसी है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कैसी फीलिंग्स बयां करते हैं, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपके शब्दों से ज्यादा मीनिंग ऐड करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और बोलते बोलते रो पड़ा, तो बेटा जैसे ही वो रो पड़ा, शायद वो अब ना बोल पाए, बट उसके रोने से आप उसकी व्यथा, उसका दुख, उसकी स्थिति को जान सकते हैं। यस और नो? ठीक है? तो इसलिए बेटा आपकी टोन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इनमें क्या होता है? एक ग्रेटर मीनिंग होता है शब्दों से ज्यादा। We can communicate a lot through signs, symbols and gestures. Gestures होते हैं बेटा हाव भाव। Gestures होते हैं हाव भाव। फॉर एग्जाम्पल, a victory sign made by 2 fingers communicates better than words. आपने देखा होगा नेताओं को जब वो जीत जाते हैं या वोट लेने के लिए जब आपकी सोसाइटी में आते हैं और निकलते हैं तो वो क्या करते हैं? लाइक दिस,
क्या करते हैं दिस। कोई सेलिब्रिटी जो है उसको अवार्ड मिला किसी फंक्शन में, वो स्टेज पर है तो वो क्या करता है, लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वी सिंबल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री, जीत का सिंबल है, राइट। द सेम इज द केस हियर। तो अब उसने कुछ बोला नहीं, द पर्सन हैजंट स्पोकन एनीथिंग, बस वो चल रहा है और लोगों को देखकर क्या कर रहा है, ऐसे उनको एक जेस्चर दे रहा है वी शेप का। तो वो क्या कर रहा है बेटा, उनको वी यानी विक्ट्री के बारे में बता रहा है, अपनी जीत के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए वर्ड से भी ज्यादा आपका जो टोन है, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो जेस्चर्स हैं, ये आपके वर्ड से ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिल्कुल बेटा, कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। आप कम्युनिकेशन करते ही तभी है जब आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन होता ही तभी है। सपोज आपको भूख लगी है, आपने अपनी मम्मा को कहा कि मुझे खाना चाहिए, खाना दे दो, तो आपने उनसे कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन किया तो आपको खाना मिला। दैट मीन्स आपका क्या था बेटा, खाना यानी भोजन को पाना क्या था, आपका एक गोल था। समझ में आई बात, ठीक है। जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा सारा दिन टेलीविजन पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर उनका क्या चलता है बेटा, उनका वीडियोस चलता है, उनकी एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट्स क्यों चलाते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि बेटा उनका गोल है क्या, कि वो आपको परसुएड करें, आपको परसुएड करें, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। और वो आपसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, लाइक दिस, ठीक है। सो कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव इफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर आर अवेयर ऑफ द गोल ऑफ द कम्युनिकेशन एंड देयर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ देयर गोल्स। बेटा सेंडर को और रिसीवर को, इन दोनों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, तभी वो उस चीज से लेकर एक ही चीज के बारे में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन का गोल भी यही है कि बिजनेस को आगे लेकर जाना। अब कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जो लोग हैं वो बाहर के लोगों से ही बात करेंगे, बिजनेस में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो हर लेवल पर मानिए 2 डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। तो बेटा दोनों क्या करेंगे भाई, आपस में दोनों डिपार्टमेंट भी तो कम्युनिकेशन करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हर लेवल पर जो है कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, नॉलेज derived फ्रॉम सेवरल साइंसेस इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, लाइक एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, सोशियोलॉजी and political science is the study of voting behavior, have provided insights to make communication effective. These are the examples. I hope you have got the features of communication. Now let's talk about the importance of communication. Communication की importance क्या है, ठीक है, और कहाँ important है, ये बात करते हैं बेटा। Effective communication has always been essential for success in business. Yes, this is true. In recent times, communication has become all the more essential due to following reasons. Now we have so many reasons. Let's talk about this. Number 1, increase in size. Business firms have grown tremendously in scale of operations. A large business firm today employs thousands of people and has operations in the different parts of the world. तो बेटा क्या है, जितनी भी आप बड़ी-बड़ी बिजनेस फर्म्स की बात करते हैं, उनमें सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है। और ऐसे जो बिजनेस फर्म्स हैं उनके दुनिया भर में ऑपरेशन चल रहे हैं। आप गूगल की बात कीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कीजिए, आप अमेजन की बात कीजिए, फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, दुनिया भर में इनके क्या चल रहे हैं, इनके अपने अपने ऑपरेशंस चल रहे हैं, दुनिया भर में इनके ऑफिसेस हैं, हजारों लोग इस जो है कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्या करने के लिए, एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए सक्सेसफुली, ठीक है। तो सोचो कम्युनिकेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। अब इतने बड़े लेवल पर हजारों लोग काम कर रहे हैं, कौन सा मैसेज कहां जाना है, किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में जाना है, सक्सेसफुली उसको बेटा कैरी आउट करने के लिए, उस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। नैरो डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। साउंड कम्युनिकेशन is essential for ensuring mutual cooperation and understanding among different departments. देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी साउंड कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने ही लोगों से बात कर रहा है, नहीं। इफ देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑल द डिपार्टमेंट people, employees, heads I would say, should have very sound communication with one another, right? ताकि क्या हो सके बेटा,
ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से स्मूथली कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्रोड्यूस करता है बेटा माल को, और सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल करता है डिपार्टमेंट, ठीक है, माल को, इनके बीच में अगर कोई कॉन्ग्रुएंस ना हो, इनके बीच में कम्युनिकेशन ना हो, इनके बीच में संचार ना हो, तो क्या होगा? हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे ऑर्डर बुक कर दे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेटा सप्लाई ही ना कर पाए। तो देखा कितनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट ऐसी जो ऑर्डर्स हैं वो बुक कर दें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सप्लाई ही ना कर पाए। ऐसा कब होगा? जब उन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इसलिए साउंड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है बेटा डिपार्टमेंट्स के बीच में भी, राइट? आगे देखिए, कट थ्रोट कंपटीशन। यस, आज के जमाने में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव रिजल्टेड इन सीवियर competition among public sector, private sector and foreign banks. Persuasive communication in the form of advertisements, personal contacts and publicity becomes essential to survive in the race of competition. आज के ज़माने में एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना? आप किसी क्रीम की बात करिए, आप किसी खाने की चीज़ के बारे में बात करिए, आप नूडल्स की बात करिए, एक चीज़ की बहुत कंपनीज हैं। अब बेटा वो जो इतनी सारी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, इतनी सारी फर्म्स क्या करेंगी? वो कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके कस्टमर्स बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट हो, ठीक है, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जाए ज्यादा से ज्यादा। तो वो क्या करते हैं बेटा? वो परसुएसिव कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। परसुएसिव का मतलब है परसुएड करना, मनाना। तो वो क्या करते हैं? बढ़िया से बढ़िया एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। टेलीविजन में लगाएंगे, न्यूज़पेपर में लगाएंगे, इंटरनेट पर आप कुछ सर्च करते हैं तो साइड में एडवर्टीजमेंट्स आएंगी। तो ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है? सोच के देखिए अब कि आप क्यों एक पर्टिकुलर चीज की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि शायद इसलिए वो आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी एड्स दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी एड दिखाते हैं। कभी कोई सेलिब्रिटी आता है, कभी कोई सेलिब्रिटी आता है, ऐसा होता है ना? तो बेटा इसी कारण से आज के जमाने में जहां कांटे की टक्कर है, परसुएसिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, पब्लिसिटी के थ्रू। तभी जो है बेटा ये सब क्या कर पाएंगे? सरवाइव कर पाएंगे आज के कंपटीशन की रेस में। आगे देखिए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। बेटा क्या होता है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का मतलब? हर कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि मैंने कहा सैकड़ों हजारों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स में काम करते हैं, तो उनका अपना एक यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। और कुछ यूनियन में उनके लीडर्स भी होते हैं। अच्छा, अब कई बार कोई भी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है, सैलरी का इशू हो सकता है, उनका वर्क का इशू हो सकता है, तो बेटा क्या होता है? ये सारे के सारे एम्प्लॉयज हड़ताल पे चले जाते हैं, स्ट्राइक पर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना? तो इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, सोसाइटी में इस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक कंपनी फॉर्म करती है, उसको चाहिए कि वो इन एम्प्लॉयज की यूनियन को, उनके लीडर को साथ में रखकर अपनी पॉलिसीज बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। अगर एक कंपनी यूनियन लीडर को साथ में रखकर बात करती है, अपनी पॉलिसी के बारे में बताती है, जो नई नई पॉलिसीज वो लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉय से सजेशंस मांगती हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है ना? क्योंकि अल्टीमेटली बेटा एम्प्लॉयज ही काम करेंगे किसी भी फर्म के लिए। इन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज यूनियन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। एम्प्लॉय की जो बेटा यूनियन होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है। मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट यूनियन लीडर्स। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो यूनियन लीडर से कंसल्ट करे, विचार विमर्श करे कुछ सेवरल मैटर्स पर, हर उस मैटर पर जो एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लगातार बातचीत होती रहती है, ठीक है, बिटवीन मैनेजर्स एंड यूनियन ऑफिशियल्स, तो बेटा इससे क्या होता है? हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कम्युनिकेशन ही है जो बात को बिगाड़ सकता है और बात को बना भी सकता है। और बात कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाए, अल्टीमेटली बात करने से ही बनेगी। दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next, human relationships. Effective communication between management and employees is necessary to develop mutual trust and confidence. Participation of employees in decision-making process and other activities help to develop among the sense
ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सोच के देखिए, अगर एक कंपनी का जो अथॉरिटी है, एक कंपनी के जो हेड हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, या उनके मैनेजर्स, अगर कभी भी किसी भी लेवल पर वो कोई पॉलिसी या रूल्स को निकालने जा रहे हैं और उसके लिए अपने एम्प्लॉय से सजेशंस मांगते हैं कि जी हम इस पॉलिसी के रिगार्डिंग सभी एम्प्लॉय से सजेशंस मांगते हैं, आप लोग भी बताइए क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो बेटा एम्प्लॉयज को भी फील होता है कि वाकई हमारी भी अहमियत इस कंपनी में रखी जाती है, वी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग में हमारा भी सजेशन काम का है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लॉयल्टी, ये चीजें फील होती हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। Public relations. Society expects a sense of responsibility from managers. Business has to keep the government, distributors, suppliers, investors and other sections of the society well informed about its contribution to the society. That means कि भाई कोई भी जो business firm है वो क्या society को लेकर contribute अपना कर रही है, वो सभी का सभी वो well informed उसे रखना चाहिए society में। society में बेटा कौन कौन लोग आ जाते हैं? गवर्नमेंट आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, सप्लायर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, उसके क्लाइंट्स आ गए, उसके कस्टमर्स आ गए। अगर वेल इन्फॉर्म नहीं रखेगी तो बेटा उसका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस हेल्प बिजनेस टू इंप्रूव इट्स इमेज इन द सोसाइटी, ठीक है भाई, तभी बेटा क्या होती है, इमेज इंप्रूव होती है सोसाइटी में। एंड बिग एंटरप्राइजेस एम्प्लॉय प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स फॉर दिस पर्पस। और बेटा बड़ी बड़ी जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ठीक है, इस काम के लिए, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिलेशनशिप अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक में इमेज अच्छी होगी तभी कुछ बात बनेगी। इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हर आई वुड से आम आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है, उनको चेहरा बनाकर ये कंपनीज पेश करती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा विश्वास उनके साथ जुड़ा होता है। पर्सनल एसेट, कम्युनिकेशन स्किल इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन जॉब, ठीक है, एवरी जॉब। मैनेजर्स रिक्वायर्ड टू डिलीवर स्पीचेस, बेटा मैनेजर्स को स्पीचेस भी डिलीवर करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी ड्राफ्ट करने होते हैं, इंटरव्यूज भी लेने पड़ते हैं। तो ये चाहिए कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हो, जैसे मैनेजर्स हो गए, टीचर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, इनके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है। नीड हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज इक्वली एसेंशियल फॉर प्रमोशन इन करियर। सो दे शुड हैव वेरी गुड एंड साउंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, सो दैट द बिजनेस कैन ग्रो फर्दर। द नेक्स्ट टॉपिक कम्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसा कि मैंने बेटा आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, as I've already told you, in a communication process it is required to have two people at least, कम से कम दो लोग होने चाहिए। First is the sender, second one is the receiver. So first is the sender, second one is the receiver. सेंडर क्या करता है बेटा? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ओपिनियन, कोई भी बात अपनी सेंड करता है, ठीक है। अच्छा, रिसीवर उसे क्या करता है? रिसीव करता है, और उसे समझने के बाद क्या करता है बेटा? उसे फीडबैक देता है, ठीक है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन process. I hope you're getting. Now, communication process consists of a series of steps by which a sender reaches a receiver with a message. अब बेटा इसका मतलब क्या है कि एक मैसेज होना बहुत जरूरी है, और वह मैसेज के साथ एक सेंडर क्या करता है? रिसीवर के पास पहुंचता है। और इस सीरीज में हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप्स। नंबर 1, डेवलप एन आइडिया। अब बेटा सोच के देखिए, अगर आइडिया ही नहीं होगा, कोई मैसेज ही नहीं होगा, कोई बात ही नहीं होगी, तो आगे के सारे स्टेप फेल हैं, ठीक है। तो वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं? नंबर 1, डेवलप एन आइडिया। एक आइडिया होना चाहिए, एक लायक बात होनी चाहिए, एक काम का मैसेज होना चाहिए जो सेंडर भेजेगा किसको? रिसीवर को। सो इट इज एन आइडिया और थॉट विच द सेंडर विशेस टू ट्रांसमिट। ये एक थॉट है, एक आइडिया है जो सेंडर ट्रांसमिट करना चाहता है। दिस इज द की स्टेप, ये एक की स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेप। Unless there is a worthwhile message to communicate, all further steps are rendered useless. अगर बेटा कोई वर्थवाइल मैसेज ही नहीं होगा कम्युनिकेट करने के लिए, तो आगे के सारे स्टेप्स क्या हैं बेटा? यूजलेस हैं, ठीक है, जीरो हैं। नेक्स्ट, एनकोड। अब बेटा सेंडर क्या करता है? अपने मैसेज को, अब उसको पता है कि मुझे क्या भेजना है, द मैसेज इज रेडी। अब वो क्या करेगा? उसको एनकोड करेगा, ठीक है। एनकोड करने का मतलब द आइडिया इज एनकोडेड विद सुटेबल वर्ड्स, ठीक है। जो भी आइडिया है, जो भी मैसेज है, अब वो उन्हें प्रॉपर वर्ड्स की फॉर्म में डालेगा, चार्ट्स डालेगा, ठीक है, सिंबल्स बनाएगा, ठीक है, सिंबल्स
फॉर ट्रांसमिशन। दैट मीन्स अब जो भी आइडिया है उस आइडिया को उसे कैसे एक रूपरेखा देनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग, ठीक है। एट दिस पॉइंट द सेंडर डिटरमिन्स, इसी पॉइंट पर बेटा सेंडर ये निश्चित करता है कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, किस प्रकार से जो है मैसेज को भेजा जाना है, राइट। नेक्स्ट कम्स ट्रांसमिट। अब मैसेज को बेटा ट्रांसमिट किया जाता है जो भी चैनल जो है सिलेक्ट किया गया है। द फाइनली डेवलप्ड मैसेज, जो फाइनली डेवलप्ड मैसेज है उसे ट्रांसमिट किया जाता है बाय द मेथड चूजन, भाई जिस भी मेथड को चूज किया गया है ना। सेंडर्स ऑल्सो चूज सर्टेन चैनल्स एंड कम्युनिकेट विद केयरफुल टाइमिंग, भाई जो भी टाइमिंग सेट हुई है ना, उसी टाइमिंग के हिसाब से क्या होगा, सेंडर अपने जो पर्टिकुलरली चूजन चैनल्स हैं उनसे कम्युनिकेट करेगा पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ। बट दे ट्राई टू कीप देयर कम्युनिकेशन चैनल फ्री ऑफ बैरियर्स, और कोशिश करेगा कि कोई भी उसके अंदर बैरियर ना हो। ऐसा ना हो कि सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच में इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाए, भाई माइक की प्रॉब्लम हो जाए, स्पीकर की कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, लाइट चली जाए। तो कोशिश करता है हर ये सेंडर की जिस रिसीवर तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है बेटा वो जो चैनल हो वो फ्री ऑफ बैरियर्स हो, बीच में कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग। देन बेटा रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैसेज का क्लियर रिसेप्शन हो। अगर क्लियरली मैसेज को रिसीव किया जाता है तो ही मैसेज को समझा जा सकता है, मैसेज को स्टोर किया जा सकता है और मैसेज को यूज किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है क्लियर रिसेप्शन का होना। इन एन इंटरपर्सनल मोड इट वुड इन्वॉल्व अटेंटेड लिसनिंग टू, और अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो बेटा लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे मतलब उसको सुनकर समझेंगे तो ही यहाँ पे मेरे बताने का मतलब बनेगा, और तभी कम्युनिकेशन क्या होगी बेटा, सक्सेसफुल होगी, राइट। आगे देखिए। अब बेटा रिसीवर क्या करता है, जब रिसीवर अपने मैसेज, जब रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव कर लेता है तो वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। भाई सेंडर ने मैसेज को क्या किया, एनकोड किया, रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। सो स्टेप 5 इज टू डिकोड द मैसेज। स्टेप 5 का मतलब है कि भाई अब मैसेज को डिकोड करना है। डिकोड करने का मतलब है कि अब वो उसे अंडरस्टैंड करेगा मैसेज को, ठीक है। द सेंडर वांट्स द रिसीवर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और मैसेज एग्जैक्टली एज इंटेंडेड। बेटा सेंडर हमेशा यह चाहता है कि जो भी मैसेज उसने भेजा था, जिस नियत के साथ उसने भेजा था, जिस इंटेंशन के साथ उसने भेजा था, जिस मीनिंग को दिमाग में रखकर उसने भेजा था, उसी मीनिंग के साथ, उसी इंटेंशन के साथ रिसीवर उस मैसेज को रिसेप्ट करे, उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है, कभी कभी ड्यू टू डिफरेंट परसेप्शन ऑफ टू डिफरेंट पीपल, बेटा दो अलग अलग लोग हैं सेंडर और रिसीवर, उनके अपने अपने परसेप्शंस हैं, अपने अपना उनका जो है बेटा एजम्पशंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं। तो द रिसीवर समटाइम्स डज नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली व्हाट द सेंडर इंटेंट्स। तो कभी कभी रिसीवर ठीक से नहीं समझ पाता कि भाई सेंडर ने क्या किया है जो सोचकर मैसेज भेजा है। दैट मीन्स मानिए अगर दो व्यक्ति हैं, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, दूसरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, और एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति से कहता है, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, तो बेटा क्या होगा, ये व्यक्ति कितनी ही अच्छी बातें बता रहा हो अपनी पार्टी के बारे में, सामने वाला क्या करेगा, वो उन बातों को अपनी पार्टी से लिंक करेगा और क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं मेरी पार्टी अच्छी है और मेरी पार्टी अच्छी थी। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए कई बार बेटा क्या होता है कि दोनों के अलग अलग क्या होते हैं बेटा, परसेप्शंस होते हैं, अलग अलग अपनी बातें होती हैं, और उसी हिसाब से कई बार रिसीवर जो है नहीं समझता जो सेंडर उसे बताना चाहता है, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर देता है, गलत समझ जाता है, जानबूझकर या अनजाने में। Hence, इसीलिए the sender must before land assess the abilities of the receiver to make the communication happen। इसलिए बेटा सेंडर को चाहिए कि वो पहले ही रिसीवर की एबिलिटीज को असेस कर ले और ये जान ले कि उसकी एबिलिटीज क्या हैं और उस हिसाब से उससे कम्युनिकेशन वो करे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इज फीडबैक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर मैसेज। बेटा फीडबैक क्या होता है, रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है सेंडर के मैसेज को। Feedback enables the sender to know whether or not his message has been received and interpreted correctly। बेटा फीडबैक enable करता है सेंडर को to know, जानने में कि उसका मैसेज जो है वो ठीक प्रकार से रिसीव हो गया है या नहीं हो गया, समझा जा चुका है ठीक से या नहीं समझा जा चुका है। तो फीडबैक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फीडबैक कैन बी वेरी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और अगर फीडबैक मिलेगा तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम कहेंगे कि वो सक्सेसफुल है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंप्रूव करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन अगर फीडबैक ही नहीं आएगा तो बेटा बात कैसे बनेगी? इसलिए फीडबैक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल एट ऑल द लेवल्स। ओके तो बेटा ये टोटल 6 स्टेप्स होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण अदा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, एक मैसेज होगा। ठीक है, उस मैसेज को क्या किया जाएगा बेटा, उस मैसेज को एनकोड किया जाएगा सेंडर के द्वारा। ठीक है, एनकोड करने के बाद उसे ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिट करने के बाद बेटा क्या किया जाएगा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा और डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद बेटा उसे उस मैसेज का सेंडर को वापस क्या देगा बेटा, फीडबैक देगा। आई होप यू हैव गॉट ऑल द 6 पॉइंट्स। नाउ एक पॉइंट इसमें बेटा मैंने डाला है नॉइस का। अब इस नॉइस का क्या मतलब है बेटा, कई बार क्या होता है ना, सेंडर और रिसीवर के इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ नॉइस आ जाती है। अब नॉइस का मतलब क्या होता है, नॉइस का मतलब होता है कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन आ गई है। डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि मानिए अभी मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हैं, मैं अपनी बातें आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं, राइट। अगर मानिए लाइट चली जाए, इंटरनेट गड़बड़ करने लग जाए, नेटवर्क्स ना मिले, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो बेटा ये क्या है, यही नॉइस है, यही वो डिस्ट्रप्शंस हैं, यही वो प्रॉब्लम्स हैं। तो कई बार कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, आ जाती हैं, राइट। चलिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन फेलियर इज कॉज्ड बाय नॉइस। नॉइस इज डिस्ट्रैक्टिंग एंड इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफ द चैनल मीडियम वी आर रिलाइंग अपॉन इज फॉल्टी, भाई जिस चैनल मीडियम पर हम रिलाय कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, अगर वही फॉल्टी हो, वही खराब हो, उसी में दिक्कत हो, तो मैसेज में बी एट टाइम्स एनकोडेड रॉन्गली, तो मैसेज को गलत तरीके से एनकोड कर दिया जाएगा। समटाइम्स डिस्टॉर्शन इन साउंड, साउंड में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पीच डिफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं बेटा, हैम्पर करते हैं, रोक देते हैं, बाधा डाल देते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा और कैसा कैसा होता है बेटा, नॉइस को अगर हम अलग रख दें तो कई बार क्या होता है बेटा, सेंडर के अपने एटीट्यूड अलग होते हैं। एटीट्यूड का मतलब सेंडर का नजरिया कैसा है किसी चीज को लेकर, उसके पर्सनल प्रीजुडिसेस कैसे हैं, वो चीजों को कैसे सोचता है। ठीक है, कैसे उसके मन में किसी बात को लेकर एक बैकग्राउंड बना हुआ है, उसके अपने अजम्पशंस हैं। ठीक है, उसका अपना माइंड है। ठीक है, और यूज ऑफ रॉन्ग टोन, हो सकता है वो रॉन्ग टोन यूज कर दे। ठीक है, तो इन सभी से बेटा क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। यही तो नॉइस होती है, यही डिसरप्शंस होते हैं, यही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होगा, सेंडर को छोड़ो, अब रिसीवर के बैकग्राउंड की बात करो। हो सकता है सेंडर अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक मैसेज भेजे, लेकिन रिसीवर का बैकग्राउंड कुछ और हो, उसके प्रीजुडिसेस अपने होंगे, उसकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कितना है मैसेज को पढ़ने का। अच्छा, वो मैसेज को उस तरह पढ़ पा रहा है, उस तरह समझ पा रहा है जिस तरह सेंडर ने उसे भेजा है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा मैटर करती हैं, और यही सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभाव डालती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स स्पीच डिफेक्ट्स, अच्छा स्पीच डिफेक्ट्स हो गया। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिंग बॉडी लैंग्वेज हो गई, कई बार होता है ना हम बोलते कुछ और है लेकिन बॉडी लैंग्वेज को कुछ और बता रही है। इलेजिबल हैंड राइटिंग, आप कुछ लिख कर दे रहे हैं लेकिन आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने और समझने योग्य ही नहीं है। ठीक है, ब्रिंग अबाउट द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं बेटा ये सारी बातें कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करती हैं, और बाधा कम्युनिकेशन का फेलियर होता है। ठीक है, और किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में बेटा अगर फेलियर होता है कम्युनिकेशन का, तो क्या होता है, इससे लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। सामने वाले के प्रति जो हमारी लॉयल्टी है, सामने वाला उस पर भी विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए इन सभी चीजों का पूरी तरह से सक्सेसफुल होना जरूरी है। तो इसलिए सेंडर को चाहिए कि वो पहले ही रिसीवर की एबिलिटीज को असेस करे और फिर मैसेज को ट्रांसमिट करे। ठीक है, जब कभी भी कम्युनिकेशन हो दो लोगों के बीच, तो अपनी अपनी प्रीजुडिसेस या अजम्पशंस को दूर रखे और फिर बात करे जीरो माइंड के साथ, ताकि हम ठीक से समझ पाए और ठीक से बयां कर पाए। राइट, तो बेटा ये देखिए, ये है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने बात किया, सेंडर क्या करता है बेटा, एक मैसेज मतलब एक आइडिया क्या करता है, डेवलप करता है अपने माइंड में। ठीक है, डेवलप करने के बाद उसको क्या कर देता है, वो एनकोड कर देता है। ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में,
चार्ट्स की फॉर्म में, सिंबल्स या साइंस की फॉर्म में, जो भी है, ठीक है। रिसीवर क्या करता है बेटा, रिसीवर रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो डिकोड करता है, मतलब अंडरस्टैंड करता है जैसा भी फॉर्मेशन में सेंडर ने एनकोड किया था, ठीक है। डिकोड करने के बाद बेटा मैसेज को वो क्या करता है, एक फीडबैक देता है, किसको, सेंडर को। और सेंडर को ये पता लगता है कि रिसीवर ने जो है रिसीव कर लिया है मैसेज को और डिकोड कर लिया है, उसने मैसेज को इंटरप्रेट कर लिया है। और फीडबैक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हमारा बेटा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कहा जाता है। यहीं पे हमें क्या मिलती है बेटा, सक्सेस मिलती है। आई होप यू हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। आज हमने बेटा कम्युनिकेशन का बात किया, कम्युनिकेशन के साथ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सभी हमने डिस्कस किया। चीजें बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ये एग्जाम के पर्पस के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम बेटा लाइफ पर्पस की बात करें तो लाइफ के लिए भी कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई एम वाइंडिंग अप द क्लास, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।